My dear students, welcome to ProTalent, and this is what a new series we are starting called Law of Contracts. This is a complete course on Law of Contract, starting with this module number 1. This is an introduction part. Law of Contract is one of the very wonderful part of your CLAT part. In your CLAT, you will definitely get some around 5 to 10 questions on law of contract. कभी कभार 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. So you should know lot of nitty gritties related to law of contract. Okay, so in this particular module we will be giving you a very brief introduction about law of contract. The students who are starting it for the first time, जो अगर ये पहली बार सुनेंगे, they will definitely learn a lot, and we will definitely talk in detail about small nitty-gritties. The students who have already completed their law of contract, for them this will be a very good revision module. ये पक्का है कि इसके अंदर आपको अच्छे अच्छे concepts मिलेंगे. We will try to cover every small things which is needed from CLAT exam point of view. Okay, so that is what we are going to discuss here in this law of contract. Before I start talking about law of contract, let me talk about important part, that is ProTalent की offline mock CLAT test series. Lot of students have joined and lot of students are working hard on your test series. In this test series, what we are offering is you will be getting 20 offline mock test and 15 online mock test. Here we are going to send this 20 ऑफलाइन मॉक टेस्ट एट योर प्लेस. आपके घर पे ये आएगा ताकि आप उस टेस्ट को अच्छे से दे पाए. देयर विल बी 10 इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक टेस्ट that is also available. Remember, this will be available in an online format. So total आपके पास 35 plus 10 45 full length mock होने वाले हैं, and then you will be getting 50 offline sectional test. In addition to that, there will be 50 online sectional test. So that will give you a very good support for your preparation. Remember, with this online test, you will get very good personalized detailed analysis for your performance. हम इसके ऊपर आपको काफी अच्छे से डिटेल में चीजों को एनालाइज करके देंगे, so that you get lot of advantage, and there is advanced level practice study material available to you. So go through this. This will be available at protalentdigital.com. ये आपको कहां से परचेज करने का मौका मिलेगा? You will purchase at protalentdigital.com. Remember, protalentdigital.com के ऊपर आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल का कंटेंट मिलता है. ओके, चलिए देखते हैं. आज हम बात करने वाले कॉन्ट्रैक्ट. क्या हम बात करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट्स. एग्रीमेंट किसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, कैपेसिटी किसको बोलते हैं, मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, कंसेंट, लॉफुल एग्रीमेंट, अनलॉफुल एग्रीमेंट, वेजर, डिस्चार्ज, ब्रीच, डैमेजेस, ये सब अलग अलग टर्म हम सीखने वाले हैं. एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे जो इसके लिए तैयार करके बैठे हैं, उनको ये सब वर्ड्स पता है, पर जो पहली बार देखते हैं उनके लिए आप चिंता ना करें. These are very easy concepts. We are going to learn about all these concepts in detail in the due course of time. Okay, remember, contract are the one of the best invention of human mind. ह्यूमन माइंड का ये सबसे अच्छा इन्वेंशन है. आप सोच रहे होंगे ये कोई साइंस की क्लास चल रही है क्या? नो, इट इज नो साइंस, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम इतनी बड़े कंट्री में, इतने बड़े वर्ल्ड में अलग अलग लोगों के साथ बैठे बैठे हम ट्रेड कर पा रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ बिजनेस कर पा रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ एक सोशल स्ट्रक्चर में रह पा रहे हैं. It is primarily because a concept called contract. और ये कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठे होंगे, दूसरों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं.
एंड एक एग्रीमेंट कर पाते हैं और इस एग्रीमेंट को हम बहुत अच्छी तरीके से गिव एंड टेक करके आगे बढ़ पाते हैं. तो दिस इज द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड. ओके, और इस माइंडसेट से हम इसको पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है. ध्यान रहे, ये हम बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बनाया गया था. ब्रिटिशरों की एक और देन हमारे लिए. ब्रिटिशर्स ने हमें ये दिया. ब्रिटिशर ने एक और चीज दी थी हमें, दैट इज कॉल्ड इंडियन पिनल कोड. रेलवे तो दिया ही था उन्होंने, ठीक है, और एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटी के एजुकेशन सिस्टम भी उन्होंने हमें प्रदान करी थी. एंड दिस इज अनदर थिंग they have given to us, but this is very good for us, जिसकी वजह से हम आज कुछ अच्छे अच्छे काम कर पाते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आता है कि सर देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एग्रीमेंट और देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट. ये दोनों क्या अलग अलग होता है? ठीक है, हमें तो लगता है दोनों सेम है. इनफैक्ट मोटे मोटे तौर पे आप जो समझ रहे हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों सेम होता है, ठीक है, दोनों सेम होता है, वो बिल्कुल कुछ हद तक बात बराबर है, ठीक है. बट देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस. क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो आप अपने फ्रेंड्स को कमिट करते हो कि 31 दिसंबर आएगा एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ बिग पार्टी, ठीक है, और कोई कारण से आप वो पार्टी दे नहीं पाए. सो इट वॉज मियर एन एग्रीमेंट. नाउ ड्यू टू विच अगर आप कोई कारण से अपना एग्रीमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो आपके फ्रेंड्स आपके ऊपर कोई लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं लगा सकते हैं. ओके, क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज इट वॉज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट वॉज मियर एन एग्रीमेंट. while in contract there is a difference. What comes in a contract? In a contract you get an agreement which is enforceable by law. कैसा एग्रीमेंट होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, पर कैसा एग्रीमेंट है? इट इज लीगली एनफोर्सिएबल. इट इज लीगली एनफोर्सिएबल. ओके, हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे अलग अलग केसेस और वहां से हमें पता चलेगा कि लीगल एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है. वापस समझते हैं एग्रीमेंट क्या होता है. एग्रीमेंट का मतलब है दैट समवन इज मेकिंग एन ऑफर एंड द अदर पर्सन इज एक्सेप्टिंग इट. कैसे होता है? यू गो टू अ दुकान, एक छोटी सी दुकान में आप गए और आपने दुकान वाले अंकल को बोला कि भैया मुझे वो कोक देना, ठीक है. आपने कभी कभार तो बोला भी नहीं, आपने सिर्फ इशारा किया कि हाँ वो देना, ठीक है. यू जस्ट सेड कि वो देना, ठीक है. और समटाइम्स यू सिंपली ओपन अ रेफ्रिजरेटर एंड यू टेक आउट दैट कोक. आप तोड़ते हो और गट 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 पी जाते हो. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. यस और नो? दैट मीन्स जब आपने फ्रिज खोला, अब प्राइमरली जब वो दुकान वाले ने फ्रिज बाहर रखा है और आप उसको खोलते हो, सो दैट दुकान वाले ने बोला दैट आई एम ऑफरिंग कि भैया आप ये कोक है, आपको अगर परचेज करना है आप परचेज कर सकते हो. आपने फ्रिज खोला, आपने बोतल निकाली और आपने तोड़ा, ठीक है, उसका जो कैप था वो निकाला. दैट कैप जो निकाला, दैट इज योर एग्रीमेंट. ओके, दैट मीन्स यू आर एग्रीइंग to consume that bottle of coke. In return you will pay money. What kind of money you will pay? Whatever is the MRP mentioned on it. Okay, whatever is the MRP mentioned on that, this is what you are going to do. That is called an agreement. An agreement means there is a meeting of mind. Okay, an agreement means a meeting of mind. There are two parties, they have a meeting of mind. Two parties become one, ठीक है, उनका माइंड बिकम वन. दैट इज बेसिकली कॉल्ड एन एग्रीमेंट. ओके, ठीक है. व्हेन टू पार्टीज, दैट इज they think about same thing in the same sense, so that is they have a meeting of mind. ध्यान रखिएगा, they have a meeting of mind. ओके, वापस समझते हैं मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब क्या हुआ. मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब हुआ that you go to, let's say, a kind of TV ka showroom and you like to purchase a particular TV, and you go there, you have seen the pricing and everything, you have seen all the necessary, you can say, features of that TV, and then you say yes I want to purchase, and samne wala bhi bolta hai yes I am ready to sell.
that is called meeting of mind. Okay, meeting of mind, this is very important. Okay, so ये होता है agreement. Okay, they are said to be in agreement when two or more people agree on the same thing in the same sense. They are said to be in agreement. That is called agreement. Remember, agreement is not necessarily a contract. An agreement has to become a contract. For that it is very important that it has to be legally enforceable. Now, what is the meaning of legally enforceable? When one person does not or refuses to do what was agreed upon, the other person can go to court and force him to do that. This is called legal enforceability. क्या बोलते हैं इसको? लीगल एनफोर्सेबिलिटी. जब कोई बंदा एग्री करता है कोई चीज और वो कोई कारण से वो अपना काम नहीं करता है, देन यू कैन गो टू द कोर्ट एंड force him to perform his duty. This is what possible. Okay, this is how the contract are. So वापस देखते हैं. It is an Indian Contract Act 1872. वो याद रखिएगा. ठीक है. Contract may be in writing or oral. There is no specified mandate in law. कहीं पे भी लिखा नहीं है that contract has to be written only. ऐसा कहीं लिखा नहीं है. It may be oral as well. We talked about that कि you go to a shop, you open the refrigerator, take out coke. ठीक है, this is very important. चलिए, great. So that means आप अपने एक्शन के द्वारा is also आप कॉन्ट्रैक्ट में आप एग्री कर सकते किसी के साथ. Now there are various kind of contract. One is called express contract, other is called implied contract, third is called quasi contract. अलग अलग नाम है, हम देखते हैं इनके बारे में. पर पहली बार के लिए समझ लेते हैं. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में रिटर्न डॉक्यूमेंट करना, दैट्स एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ओरली आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. कॉसी कॉन्ट्रैक्ट मैं आगे थोड़ी देर में बात करूंगा, आज नहीं अगले मॉड्यूल में मैं बात करूंगा कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में. पर आज आपके दिमाग में ये वर्ड खनकना चाहिए और इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है. सो व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्ट्स? कॉन्ट्रैक्ट्स आर important part of commercial law, because all commercial law transactions are usually begin with an agreement or a contract, and therefore I said it's the biggest invention of mankind. Okay, business transaction involve sale and purchase or exchange of services, and they are becoming very integral part of day-to-day activities of any business. Okay, and in such instances an agreement or a contract is necessary for determining rights, obligations and liabilities of parties when they enter into any such kind of business transactions. And therefore there is something called Indian Contract Act. According to Indian Contract Act 1872, it will be referred to as ICA. An agreement that is enforceable by law is a contract. That means an agreement which is enforceable by law is a contract. An agreement in a simple word is about promises. An agreement, that means all agreements are not necessarily contract. Only those agreements which are enforceable by law are called contract. Agreements must meet certain criteria. क्या क्या होना चाहिए? ये सब होना चाहिए. Consideration, parties must be competent, free consent between party, lawful object and not expressly declared by law in order to qualify as a contract. टोटल 5 चीजें, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. इट इज इंपॉर्टेंट दैट पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट शुड ऑल्सो हैव इंटेंशन एंड माइंड सेट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. क्या क्या होना जरूरी है? कंसिडरेशन, ये हम देखेंगे क्या होता है. पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट. ओके, दैट मीन्स जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल है वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आप और मैं ताजमहल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते. For example, because you and I don't own Taj Mahal. ठीक है, that's a very simple thing. We are not competent to sell or purchase Taj Mahal. Free consent between parties. Parties के बीच में consent. I'm sure you know consent. Okay, हाँ बोलना या ना बोलना, that is how the idea is. जो हाँ बोलना है उसको consent बोलते हैं और वो कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए. And then there has to be a lawful object. ठीक है, you and I cannot do a contract for an unlawful object. Okay, ठीक है, and
इट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। कभी कभार कुछ चीजें लॉफुल ऑब्जेक्ट लगती है, पर लॉ ने उसको एक्सप्रेसली वॉइड करके रखा है। हम देखते हैं उसके बारे में, बट वापस आते हैं एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आई एम रिपीटिंग फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। ध्यान रखिएगा, मैं ये इसलिए रिपीट कर रहा हूं so that you understand this, that agreements which are enforceable by law becomes contract, and therefore all contracts are agreements, but not all agreements are contract. Okay, this is very important. Okay, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक मजेदार सा केस हुआ था जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ बहुत बार उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, दैट इज बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। ओके, द वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट वाज एंटर्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, हस्बैंड एंड वाइफ ये लोग रहते थे सिलोन में, उस समय पे उसको श्रीलंका माना जाता था, है ना, वो वहां रहते थे। हस्बैंड एंड वाइफ वेंट ऑन अ लीव टू इंग्लैंड एंड वाइफ फेल इल इन इंग्लैंड। वाइफ इंग्लैंड में बीमार हो गई। द डॉक्टर्स हु ट्रीटेड द वाइफ एडवाइज्ड हर टू टेक फुल बेड रेस्ट and remain in England in order to continue the treatment. Okay, the wife stayed in England. When the leave was over, husband went to Ceylon, Sri Lanka, जहां पे उसकी नौकरी थी, and he promised to send a sum of 30 pound to his wife every month for her stay in England. He sent amount for some time, and later on, due to differences and misunderstanding between them, husband stopped sending the amount. The wife initiated action to recover the arrears due to her. Wife ने बोला that it was a contract between wife and a husband. Husband ने मुझे 30 पाउंड देने का वादा किया है और वो मुझे देना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला, और जो पुराना पैसा है वो भी उनको देना चाहिए। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बात कोर्ट में पहुंची, कोर्ट ने इस पूरी बात को डिसमिस कर दिया ऑन द ग्राउंड दैट एन एग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ वाज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, हम सीख रहे हैं दैट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, हम ये बात सीख रहे हैं, यहां पे हस्बैंड ने वाइफ को बहुत सारे वादे करे, और इनफैक्ट लाइफ में हम बहुत सारे वादे करते हैं और ये वादे कोई कारण से हम फुलफिल नहीं कर पाते, एंड दे आर मियर प्रॉमिस। ओके, दे आर मियर प्रॉमिस। सो द एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ was only a moral obligation, and parties never intended to create any legal relationship, and therefore the all agreements are not contract. So the decision clearly shows that agreements that create legal obligations are only contract, and those agreements that do not intend to create any legal relationship are not contract. So ध्यान रहेगा, दिस इज बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का फेमस केस है। ठीक है, और इस केस के द्वारा ये आउटपुट आया है। सो व्हाट वी लर्न दैट all contracts are agreement, but not all you can say agreements are contract. Okay, so how do you understand कि ये agreement contract में है कि नहीं? So we try and check this reasonable person. A reasonable person should think that parties intended to enter a legally binding relationship. कभी भी लॉ में दिक्कत होती है कि हम किसको सही माने, कि क्या चीज जो हमने शब्दों में लिखी है वो चीज सही है कि गलत। देन वी गो टू अ रीजनेबल मैन एंड सी कि उस बंदे के नजरिए से क्या लगता है। अगर एक रीजनेबल आदमी से ये पूछा जाए कि ये लोग एक एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप में घुसना चाहते हैं कि नहीं। एक बंदे ने अपनी दुकान खोली, दुकान के बाहर रेफ्रिजरेटर लगाया, वहां पे उसने कोक लगा के रखी है, और बाजू वाले ने एक मजेदार सा एक पानी पीने का एक जगह बना के रखा हुआ है। जिस बंदे ने रेफ्रिजरेटर लगाया है उसने वहां पे पानी की बोतलें रखी है, उस बंदे ने पानी का मटका रखा है, दूसरे बंदे ने। अगर आप चलते चलते रेफ्रिजरेटर खोलो, पानी का बोतल लो, वो सील्ड कैप था, आपने उसको तोड़ा, पानी पिया, है ना, फ्रिज बंद किया, चलते बने, वो नहीं चलेगा भैया।
क्योंकि आपने जब फ्रिज खोला, पानी का बॉटल लिया, तोड़ा और आपने पिया, विच मीन्स आपने एक लीगली बाइंडिंग रिलेशन में घुसने का वादा किया है। पर आपने कहीं पानी की परब थी और वहां पे आपने वो मटके में से पानी लिया, पानी पिया, ग्लास रखा और आप चलते बने, देयर इज नो लीगली बाइंडिंग relationship you are entering into. Okay, so that means that will become your, you can say, agreement, while the other thing would be contract. So legally binding relationship क्या होता है? A relationship from where legally binding obligation arise. This is very important. ठीक है, legally binding relation होनी चाहिए. This is very crucial. ठीक है, and intention का मतलब क्या हुआ? There must be a mental state to create that legally binding relationship. Okay, so tricky area is ये जो legally binding relation है ना, वो important है. ये obligation are those obligation that a court of law can enforce should one of the parties refuse to abide. Okay, what matters is not what parties had in their mind, but what a reasonable person would think in circumstances of the kind of circumstances in which he is involved, और उसमें उसका intention क्या था. Okay, so this is what the, you can say, legally binding obligation का मतलब. Okay, चलिए ग्रेट. अब वापस समझते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है. ठीक है, हमने जो मतलब जो पहली एक्शन करी थी, है ना, पहला जो हमने एक फैक्ट देखा था, उसको हम वापस समझते हैं. क्या हुआ? यू वेंट टू अ दुकान, आप एक दुकान पे गए, आपकी क्लेट की कोचिंग खत्म हुई, आप नीचे गए, वहां पे बहुत गर्मी थी, तो आपने बोला कि भैया एक कोक देना. ठीक है, यू वेंट टू दैट पर्सन एंड यू सेड कि भाई साहब कोक देना. नाउ व्हेन यू सेड कोक देना, ठीक है, आपने इतनी सारी चीजें उसके पीछे बोली है ना, दैट इज योर इंटेंशन. ठीक है, क्या क्या बोला है वो मैं बताता हूं. आपने बोला भाई साहब एक ठंडा कोक देना. ओके, अच्छा, अब मानो उनके पास कांच की बोतलों की कोक है, तो यू सेड कि मुझे कांच की बोतल वाला कोक देना. ओके, आपने बोला कि ये कोक मैं लूंगा, मैं उसको पीऊंगा, पीने के बाद मैं आपको ग्लास वापस, मतलब कांच की बोतल वापस करूंगा, और जो मैंने बोतल का जो कोक पिया है उसके रिटर्न में बोतल का जो एमआरपी होगा वो मैं आपको वापस करूंगा. ठीक है, दिस इज व्हाट यू सेड इन, मतलब इनडायरेक्टली यू सेड कि भाई साहब कोक देना. ठीक है, अब वो सामने वाला भाई साहब ने भी कुछ एक्शन करी. ठीक है, उन्होंने, आपने बोला भाई साहब कोक देना, तो उन्होंने गए अपना रेफ्रिजरेटर खोला, ठीक है, कोक निकाला, कोक का बॉटल तोड़ा. ठीक है, अच्छा, कभी कभार लोग बॉटल तोड़ने से पहले क्या करते हैं, बॉटल लाते हैं आपके सामने, ऐसे रखते हैं कि आप उसको टच करो. दैट इज हाउ इट हैपेंस, कि ठंडा है कि नहीं, बराबर है कि नहीं. ठीक है, तो आपने टच किया, आपने सेड यस. ठीक है, आप उसने फिर बॉटल तोड़ी और उसने आपके हाथ में रखी. ओके, सो उसने कुछ बोला नहीं है, उसने कुछ बोला नहीं है, पर उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने पास करी, एंड जिसकी वजह से दोनों लोगों का माइंड एक हुआ. दिस इज वेरी क्रूशियल, दैट इज मीटिंग ऑफ माइंड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दो लोगों का माइंड एक होना चाहिए. क्या माइंड एक होना चाहिए था? माइंड ये एक होना चाहिए था कि आपने बोला कोक देना, तो यू थॉट कि भाई मुझे ठंडा कोक चाहिए, सामने वाले ने एग्री करा कि आई विल गिव यू ठंडा कोक. अच्छा, उसने आपसे टच भी करवाया, यू सेड यस यस, इतना ठंडा बराबर है. दूसरा, आपने बोला कि भाई मैं इसका पैसा दूंगा, और सामने वाले ने भी एक्सपेक्ट करा कि आप इसका मुझे पैसा देना. तो बहुत सारी चीजें इसके साथ हुई, एंड दैट इज हाउ द एग्रीमेंट टेक्स प्लेस. यस और नो? वापस समझते हैं. यू वेंट टू दैट कोक का दुकान एंड यू, आपने बोला भाई साहब कोक देना. ठीक है, अब मानो वो भाई साहब ने क्या करा, आपने बोला कोक देना, उसने कहीं से कोक की बोतल निकाली, उसने तोड़ी और आपके सामने रखी. ठीक है, आपने सिर्फ उतना बोला था कि भाई साहब कोक देना. ठीक है, उसने आपके साथ बोतल तोड़ के आपके सामने रखी और आपने छुआ, तो वो उबलता हुआ कोक था भैया. क्या था? उबलता हुआ कोक था. भैया उबलता हुआ कोक कौन पीता है? यू सेड आई डोंट वांट दिस कोक. भले उसने, नहीं नहीं भाई मैंने तो बोतल तोड़ दी है, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा. Then that is not right, because what you said was कोक देना. इनडायरेक्टली यू सेड कि भाई साहब मुझे चिल्ड कोक देना. आपने कुछ बोला नहीं है, पर फिर भी उसका मीनिंग ये होता है कि मुझे चिल्ड कोक चाहिए. ओके, और उस बंदे ने अगर आपको उबलता हुआ कोक दिया, दैट इज नॉट डन. उसको आप नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे.
एक रीजनेबल आदमी के नजरिए से ये सही नहीं होगा। ओके, चलिए ग्रेट। सो ये पूरा सिनारियो कैसे हुआ? जब आपने बोला भाई साहब कोक देना, देन यू सेड कि मैं आपको पैसे दूंगा इस कोक के लिए, मुझे ठंडा कोक चाहिए। सामने वाले बंदे ने बोला कि ओके, आई विल गिव यू कोक प्रोवाइडेड यू विल गिव मी मनी। दिस इज हाउ द आइडिया इज। सो आपने बोला ऑफर, आपने जो भी बोला उसको ऑफर बोलेंगे, सामने वाले ने जो किया उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस। ओके, समझते हैं क्या हुआ? देयर इज एन ऑफर एंड देयर इज एन एक्सेप्टेंस। there is an offer and there is an acceptance. What is offer? Offer would be, आपने बोला मुझे कोक देना, आई एम रेडी टू पे यू मनी। सामने वाले बंदे ने बोला ओके, आई विल गिव यू कोक एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द डिजायर्ड कोक। ओके, सो दैट इज हाउ द ऑफर एंड द एक्सेप्टेंस। ठीक है, दोनों पार्टी का ऑफर एक्सेप्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑफर एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेस्ड वे में हो। ठीक है, इंप्लाइड वे में हो सकता है। ठीक है, इंप्लाइड वे में हो सकता है। ठीक है भैया, ध्यान रखना, जब ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों होंगे तो ही जाकर एग्रीमेंट बनेगा, उसके बगैर एग्रीमेंट नहीं बनेगा। ओके, चलिए एक और सिनारियो देखते हैं कि कैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है। यू गो टू सम ऑक्शन, आपने देखा होगा आईपीएल का ऑक्शन अभी हुआ था। आईपीएल के ऑक्शन के अंदर भाई बोला युवराज सिंह कि भाई इतने रुपीस पे। ओके, तो भाई सब लोगों ने क्या किया, एक ऐसे प्ले कार्ड लगाया ऊपर कि हमारे तरफ से हमारी बोली इतनी है। ठीक है, हम देंगे भैया इसका 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़, वॉट एवर दैट मनी इज। ठीक है, फाइनली एक अमाउंट आई। ठीक है, फाइनली एक अमाउंट आई। वो अमाउंट पे सामने वाला जो ऑक्शनियर था उसने क्या किया कि भैया 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, 10 करोड़ 3 एंड देन ही स्ट्राइक एन हैमर। जैसे ही उसने हैमर स्ट्राइक करी, आपकी ऑफर जो 10 करोड़ की थी, जो युवराज को परचेस करने की थी, वो उसने एक्सेप्ट कर ली। वो उसने एक्सेप्ट कर ली। सो दैट इज हाउ द एग्रीमेंट टेक्स प्लेस। आपने ऑफर किया 10 करोड़, उसने हैमर स्ट्राइक नहीं करी है। ठीक है, उसने हैमर स्ट्राइक नहीं करी है, उसके पहले उसने किसी और के साथ एग्रीमेंट कर दिया। सो दैट इज एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट। आपकी ऑफर अभी तक एक्सेप्ट हुई नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सो टू हैपन एन एग्रीमेंट देयर हैज टू बी ऑफर एंड देयर हैज टू बी एन एक्सेप्टेंस। ये दोनों होना चाहिए तो जाकर एग्रीमेंट बनेगा, और वो एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ओके, कॉन्ट्रैक्ट बोलने के लिए एग्रीमेंट होना तो बिल्कुल जरूरी है। यस और नो? यू गो टू अ बिग you can say mall and you go to let's say super store से आपने बहुत सारा सामान उठाया, वहां से एक ट्रॉली में रखा, and when you go to cash counter, what are you doing? You are making an offer to that cash counter. कैश काउंटर वाले बंदे के पास you can say अभी भी एक राइट है, वो बोलता है कि मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं। ठीक है, वो शायद एक्सेप्ट ना करे। आपने देखा होगा बहुत बार सुपर स्टोर में वो आपसे सामान लेता है और उसका कहीं नंबर नहीं उसका मैच होता है। ठीक है, तो वो बोलता है कि ये सामान मैं आपको दे नहीं सकता हूं। ठीक है, तो आई विल नॉट गिव यू। अब आप बोलोगे अरे अपना एग्रीमेंट हो चुका है, क्योंकि जैसे ही मैंने सामान वहां से उठाया और मैंने ट्रॉली में डाल दिया, इट इज अवर एग्रीमेंट। नो, दैट इज नॉट एन एग्रीमेंट। योर एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट टेक्स प्लेस एट द कैश काउंटर, एट द कैश काउंटर। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑफर कब हो रही है, एक्सेप्टेंस कब हो रही है। कोई भी एक्शन अब आप करें तो उसमें आप डबल क्लिक करके देखें कि कब वो ऑफर है और कब वो ऑफर का सामने वाले का रिएक्शन इज एन एक्सेप्टेंस। ठीक है, लेट्स से यू गो एंड परचेज आलू, आप पोटेटोज परचेज करने गए, आलू परचेज करने गए, उसने बोला 30 रुपीज पर केजी। ठीक है, आपने बोला आई वॉन्ट टू परचेज 1 kg ऑफ यू कैन से पोटेटोज, गिव मी योर ऑफर। तो उसने बोला ऑफर है कि भाई 30 रुपया पर केजी। यू सेड नहीं नहीं भैया बहुत महंगा है। ठीक है, तो आपको एक्सेप्ट करना था, आपने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। आपने बोला नहीं नहीं भैया नो, नो करके आप आगे चले गए, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। आपने नो बोला एंड यू सेड नो, आई वांट टू परचेज एट 20 रुपीज। ठीक है, मैं 20 रुपए पर परचेस करना चाहता हूं। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मेकिंग अ काउंटर ऑफर। अभी तक तो कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं है। ठीक है, फिर सामने वाला बोलता है नहीं नहीं 20 तो बहुत कम है हमें घर पे भी इतने में नहीं आता है। ठीक है, एक काम करो, नहीं आपका नहीं मेरा, विच इज अ स्टैंडर्ड थिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, नहीं आपका नहीं मेरा, 25 पे रखते हैं। ठीक है, तो 25 इज अनदर काउंटर ऑफर। ठीक है,
एक तो सामने वाले ने पहले ऑफर करी 30 रुपीज, देन यू मेड एन ऑफर ऑफ 20 एंड इन रिटर्न ही मेड ए 25 का ऑफर। यू सेड नहीं 25 भी ज्यादा है, 22 करते हैं, ठीक है, एंड देन फाइनली 22 में दोनों ने एग्री कर दिया। सो दैट इज बेसिकली एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, ठीक है। और उसने आपको आलू दिए 1 kg, आपने उनको 22 रुपये दिए, एंड दैट्स हाउ दी यू कैन से कॉन्ट्रैक्ट गेट्स फॉर्म्ड। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। जब तक आपका ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ नहीं है, सिंपली मियर एन ऑफर इज नॉट एन एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। ओके, सो आवर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ये 3 चीजें होनी चाहिए, देयर इज एन ऑफर, देयर इज एन एक्सेप्टेंस एंड देयर इज अ कंसिडरेशन। क्या होना जरूरी है? देयर इज एन ऑफर, देयर इज एन एक्सेप्टेंस एंड देयर इज अ कंसिडरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन। देखते हैं व्हाट इज कंसिडरेशन, 2 मिनट में देखते हैं, ठीक है। ए मेक्स द ऑफर टू बी एक्सेप्ट्स द ऑफर, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। सो व्हाट इज एन ऑफर? ऑफर सेज, ए सेज टू बी, I want to sell my watch for ₹100. Remember, offer could be of selling, offer could be of purchasing as well. Offer selling की भी हो सकती है, offer purchasing की भी हो सकती है. So he is making an offer that I want to sell my watch. Okay, so there are 2 things in this offer. One, what do you want to sell? That is, what is the thing, what is the subject you want to do? And number 2, at what price? Okay, so your object, that is your watch, will be, you can say, a kind of object for you, और उसके सामने जो आपको 100 रुपया मिलेगा, that 100 rupees is a consideration. क्या बोलते हैं इसको? Consideration. Remember that. That is called consideration. What is a consideration for B? B जो आपको 100 रुपया देगा, उसके सामने जो उसको वॉच मिलेगी, the watch is a consideration for B. 100 rupees is a consideration for A and watch is a consideration for B. ध्यान रखिएगा ये. So it is a means for a consideration is ₹100 if I would give my watch. And what is acceptance? B says, I accept your offer. I am willing to pay ₹100 for your watch. ठीक है, this is very interesting. I am ready to pay 100 rupees. ठीक है, so this is how the offer and acceptance. ठीक है, अखबार में जो आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, ठीक है, अमेजोन पे जो आप ऑफर देखते हैं, ये कोई ऑफर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। अखबार में जो एडवर्टीजमेंट आया, ये अमेजोन वाले ने आपको जो दिखाया या फ्लिपकार्ट वाले ने जो आपको दिखाया, दिस आर नॉट द ऑफर, दिस आर नॉट द ऑफर। सो व्हाट आर दे डूइंग? चलो देखते हैं क्या हुआ, ठीक है, शांति से समझते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ, एक एक करके देखते हैं। थोड़ा मैं उसको ड्रामेटिक कर रहा हूं, ठीक है। लेट्स से यू गो टू क्रोमा स्टोर। क्रोमा इज बेसिकली दैट डिजिटल इक्विपमेंट का जगह है, और वहां पे मजेदार सा सैमसंग का QLED कर्व्ड टीवी लगा के रखा है। ओके, वो डिस्प्ले में रखा है। सो डिस्प्ले में जो लगा के रखा है, और वहां पे लिखा है 3 लाख रुपीज, टीवी अवेलेबल एट 3 लाख रुपीज, ये इन्होंने लिखा है। एक दिन सुबह सुबह एक बंदा 3 लाख रुपीज लिख रहा था, उतने में किसी का कॉल आया, 3 लाख की जगह पे उसने 30,000 लिख दिया, ठीक है। एंड you went on the same day and you saw, अरे वाह, this is 30,000 rupees and you want to purchase it. You took out that and you went to the cash counter. ठीक है, आपके मन में ऐसा लग रहा था कि जो डिस्प्ले में सामान रखा है और उसमें जो नीचे अमाउंट लगा के रखी है, that's your offer and you simply take that, that's your acceptance. You go to the cash counter and then you say कि ये 30,000 का लो पैसा और मुझे ये टीवी दे दो, ठीक है। Will that be offer and acceptance? No. When is the offer being made? When you take out that TV, you go to the cash counter and you say, I want to purchase that. You are making an offer. ठीक है, एंड सामने वाला बंदा अगर एक्सेप्ट करता है, सो दैट्स एन एक्सेप्टेंस। देन यू मे आस्क मी, सर वो जो डिस्प्ले किया हुआ है वो क्या है? इज दैट एन ऑफर? नो 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 नो, दैट इज नॉट एन ऑफर, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। जो उसने डिस्प्ले में डाला है, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। वो आपको इनवाइट कर रहा है कि एग्जैक्टली ऑफर क्या है। ओके, यू मेक एन ऑफर फॉर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ओके, दैट इज कॉल्ड इन्विटेशन टू ऑफर। आप वो टीवी लेकर आप ऑफर देने के लिए वहां पे जाते हैं, दैट इज हाउ द इन्विटेशन टू ऑफर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, दिस इज कॉल्ड इन्विटेशन टू ऑफर।
Amazon वाले ने जो आपको साइट पे दिखाया, ठीक है, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर. फॉर एग्जाम्पल, यू कम टू protalentdigital.com की साइट एंड देयर वी हैव डिस्प्लेड कि हमारी टेस्ट सीरीज इतने में अवेलेबल है, हमारा स्टडी मटेरियल इतने में अवेलेबल है. वी आर इनवाइटिंग यू टू मेक एन ऑफर टू अस, द प्राइस वॉट एवर वी हैव डिसाइडेड. देखो भैया, ऑफर और एक्सेप्टेंस के अंदर प्राइस कौन डिसाइड करता है? दैट इज इमटेरियल. ओके, जनरली ये हमारी वेबसाइट पे वी डिसाइड प्राइस, वी हैव पुट इट. ओके, ठीक है, हमने वहां पे रख दिया है. अब आप एक फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद यू कैन से मेक एन ऑफर टू अस. ठीक है, यू मेक एन ऑफर टू अस, वी एक्सेप्ट. व्हेन डू वी एक्सेप्ट? वी एक्सेप्ट व्हेन यू पे मनी. फाइनली जो आपने पेमेंट कर दिया, दैट इज वेयर वी एक्सेप्ट. ओके, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर जब आपने जो भी वहां पे डिस्प्ले देखा, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर. उसमें टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर लिखी हुई होती है, आप उसको समझते हैं, देखते हैं, और उसके बाद यू मेक वांट टू परचेज एंड देन आप उसको ऑर्डर देते हो, चेकआउट करते हो. चेकआउट करना इज मेकिंग योर ऑफर. वो ऑफर के बाद इट इज फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन दैट हैज टू डिसाइड कि whether they are accepting that offer or not. And once they accept that offer, it's an agreement between you. ठीक है, विच मीन्स अगर वो आपके घर पे सामान डिलीवर करने आया तो इट इज पक्का कि आपको पैसा देना पड़ेगा. वैसा होता है. क्यों में सर ऐसा तो नहीं होता है भाई. वो आज के जमाने में बहुत ही लीनियंट वे में वो लोग आपके साथ डील करते हैं, बिकॉज इट इज एन इनिशियल मार्केट. एंड देयरफॉर अगर आप वहां पे आए, आपने ऑर्डर किया, वो सामान आपके घर तक देने आया और फाइनली आप बोलते हो कैश ऑन डिलीवरी मुझे नहीं लेनी है, कोई चिंता नहीं है. ठीक है, आप वो बंदा वापस चला जाएगा. ठीक है, पर आपका एग्रीमेंट टेक्निकली हो चुका था. जब ये सोसाइटी थोड़ी इवॉल्व होगी, आज से करीबन 5-6-7 साल के बाद, ये संभावना एकदम कम हो जाएगी कि आप किसी को ना नहीं बोल पाओगे, आपने ऑर्डर किया होगा तो. ओके, सो द पॉइंट इज इट्स एन एग्रीमेंट. ओके, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट गेटिंग फॉर्म्ड even in that scenario. So anything, any communication before an actual offer is called invitation to offer. क्या बोलते हैं इसको? Invitation to offer. I hope that is very clear. आप ये बात समझ पा रहे हैं. Invitation to offer. So there are two types of things. One is called general offer and second is called specific offer. What is specific offer? When offer is made to a particular person and that person can only give the acceptance, that is called specific offer. What is a general offer? When the offer is made to public at large, not to a specific person, that is called general offer. Okay, so for example, America advertises in the newspaper that anyone who finds this Al Jawari, which is a Taliban chief, will get a reward of $10 million. Here it is a general offer. Okay, it is a general offer. And specific offer saying that A telling to B that he wants to sell his mobile phone at 2000 rupees to B, here it is a specific offer. Okay, here it is a specific offer. So this is how the offers are. There is invitation to offer and the offer are of two types, specific and general offer. Okay, what are the essential requirement to, you can say, have offer and acceptance? Remember, offer और acceptance होने के लिए सबसे important चीज है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों होना जरूरी है. बगैर कम्युनिकेशन ऑफर का कोई मतलब नहीं है, एक्सेप्टेंस का कोई मतलब नहीं है. ओके, ए हैड अ रिवॉर्ड out for whoever finds his son as B finds his son but had no idea about the reward, finds about the reward only after he has written S to A. Can B claim reward? No, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं है. Therefore no agreement. भाई कम्युनिकेशन होगा, मीटिंग ऑफ माइंड तो तभी बनेगा ना. वी आर सेइंग भाई एग्रीमेंट होने के लिए मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए. मीटिंग ऑफ माइंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? कम्युनिकेशन. अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग तो आप सब कुछ कर पाएंगे. दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग. एक एग्जांपल है यहाँ पे. जैक वांटेड टू मैरी जेन. अकॉर्डिंग टू ही प्रपोज्ड इट. जेन in her heart started to believe Jack as her husband, but she is very shy to accept. उसने कभी बोला नहीं. ठीक है, तो अब जैक को कोई आंसर आया नहीं तो जैक मैरिड टू एना. ठीक है, एंड देन जेन sues जैक
for breach of contract. Was there ever any contract happen between them? No contract. Okay, क्यों भाई जेन ने बात तो मतलब मनी मन जो मान लिया, पर मुंह पे बोलना तो चाहिए था कि यस जैक आई एम रेडी टू मैरी यू. ओके, सो दैट्स हाउ द आइडिया हियर इज. ओके, ये एग्जांपल के लिए दिया था भैया, ऐसा जरूरी नहीं है कि सच काइंड ऑफ थिंग आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सेकेंड एलिमेंट, must be very clear and not vague. Okay, by offer and acceptance must be very clear, not vague. Okay, A owned 3 flats XYZ. B calls him and says he is willing to pay 1 crore for his flat. Which flat? Not known, and therefore you can say it's not very clear. Okay, आप दुकान पे गए, भाई साहब ठंडा देना. अब उसने आपके मन में सोचा कि ठंडा मतलब कोका कोला, और उसने आपको फेंटा निकाल के दे दिया, उसने आपको पेप्सी निकाल के दे दिया, उसने आपको थम्स अप निकाल के दे दिया. दैट इज नॉट डन. ठीक है, दैट इज नॉट डन. आपकी भी गलती थी कि आपने बोला नहीं बराबर कि आपको क्या चाहिए. ठीक है, यू हैव टू टेल हिम कि भाई साहब कोक देना, यू हैव टू टेल हिम थम्स अप देना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी वेरी क्लियर, नॉट वेग. सो वापस समझते हैं क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट है. एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज दिस: communication of offer and acceptance is very essential. Number 2, offer and acceptance must be clear and not vague. ये दो चीजें फुलफिल करना बहुत जरूरी है. अगर ये फुलफिल नहीं हुई तो ऑफर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं हुआ. कम्युनिकेशन होना इज अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर मीटिंग ऑफ माइंड. ध्यान रखना, एग्रीमेंट होने के लिए मीटिंग ऑफ माइंड चाहिए, और मीटिंग ऑफ माइंड के लिए ठीक है कम्युनिकेशन और क्लैरिटी होना जरूरी है. ओके, सो अभी हमने बात देखी थी इनविटेशन टू ऑफर. ठीक है, अब जनरल रूल क्या होता है? देयर इज एन ऑफर, देयर इज एन एक्सेप्टेंस, द कॉन्ट्रैक्ट इज टेकिंग प्लेस एंड देयर इज अ लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप. बट कभी कभार ऑफर के पहले जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर. जैसे टेंडर में जो लिखा गया है कि भाई आओ हमारे पास एक कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर आप अपना यू कैन से ऑफर दो, दैट इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर. ठीक है, आई हैव गिवन यू इनफ एग्जांपल ऑन दिस इनविटेशन टू ऑफर. यहाँ पे ए हैड पुट इन हिज शॉप अ लिमिटेड एडिशन बुक whose price is rupees 1000. B came and put rupees 1000 on A's counter. जब उसने जो डिस्प्ले में रखा है, जो किताब डिस्प्ले में रखी है, that is called invitation to offer. That's not an offer. भले भी वहां पे पैसा रख दे, A may refuse to sell that item. Okay, A may refuse to sell that item. Okay, and another important part in terms of this communication about offer and acceptance, a communication of a postal rule, a communication of a postal rule, है ना, जहां पे कोई भी कम्युनिकेशन नॉट इंस्टेंटेनियस मोड पे हुआ, जहां पे इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन नहीं हुआ है. ठीक है, ईमेल के द्वारा हुआ, आपके लेटर के द्वारा हुआ, तो वहां पे एक रूल लगता है, ध्यान से देखिएगा. A write a letter to B saying he wants to sell his house to him for rupees 1 crore. B write a letter back, you can say, accepting A's offer. B's letter reaches A after 15 days. Meanwhile, A sells the house to C. B's use A for breach of contract. B was bound by his acceptance on the day he put the letter in the mode of communication. A was bound by B's acceptance only when he gets the letter, not before that. He has made the offer to B. उसने देखा और उसने समझा कि भैया अभी तक B का कोई कम्युनिकेशन आया नहीं है. भाई ध्यान रखना, पोस्टल रूल में कभी कभार वो लोग ऐसा लिख के भेजते हैं, दिस ऑफर इज वैलिड फ्रॉम द डे ऑफ our communication up to 15 days, up to 30 days, up to 6 months, whatever the time they have mentioned, तब तक वो ऑफर उनकी वैलिड है. ओके, उस समय पे अगर सामने कम्युनिकेशन आ गया तो दैट पर्सन इज बाउंड. पर अगर ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो ए इज बाउंड व्हेन ही गेट्स अ कम्युनिकेशन फ्रॉम बी. ये बहुत जरूरी है नॉन इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन के ऊपर. इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ट्रिकी एरिया है. चलिए देखते हैं, इसके ऊपर हम दो अच्छे क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन, ओके, प्रिंसिपल बोलता है इफ पर्सन एक्सेप्ट्स एन ऑफर मेड बाय अ पर्सन
then a contract is formed. बहुत ही सिंपल सा वन लाइनर प्रिंसिपल, सिंपल सा वन लाइनर प्रिंसिपल. फैक्ट बोलता है प्रबोध is keen on selling his car to Ritikesh and tells him that he is keen on selling this car for rupees 1 crore. Ritikesh tells him that he will certainly buy the car for the said amount, but request Prabodh to paint the car white. Okay, a few weeks pass by. Prabodh receives an offer from Mikey, who is willing to pay rupees 2 lakh for a car. Prabodh sells the car to Mikey. When Ritikesh finds out this, he is very upset and he sues Prabodh, saying that there is a contract between them. Now, was there any contract? When Prabodh says, I am ready to sell my car, Ritikesh said, yes, I am ready to purchase, but change it to white color. This is called counter offer. दिस इज कॉल्ड काउंटर ऑफर. इसको क्या बोलते हैं? काउंटर ऑफर है. और इसकी वजह से ये काउंटर ऑफर के लिए प्रबोध का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तो उनके बीच में एग्रीमेंट है. प्रबोध ने कुछ बोला क्या? नो. ध्यान रखना, अगर कोई आदमी ने कुछ बोला नहीं है, साइलेंस, ठीक है, ऑफ अ पर्सन विल बी टर्म्ड एज अ रिजेक्शन. इट डिड नॉट एग्री. ध्यान रखना, साइलेंस इज इक्वल टू रिजेक्शन. तो प्रबोध ने कुछ बोला नहीं, which means it is a rejection. So therefore, is Prabodh liable? No, because the contract was not accepted. He is not liable because the contract was not acceptable. Okay, chaliye, great. Number 2, a contract is completed when an offer is accepted by the other party. वापस सेम सिंपल सा प्रिंसिपल है. कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब ऑफर एक्सेप्ट करी गई है. Amitabh and Rekha are negotiating a contract under which Rekha will supply ball bearings to Amitabh's industrial unit. During a telephonic negotiation, Amitabh says, I will buy your ball bearing for rupees 2 apiece. Rekha's response, Rekha ने हाँ या ना जो भी बोला, we don't know, but it was drowned by an aeroplane flying overhead. मतलब ऊपर प्लेन चल रहा था, आवाज नहीं आई, और जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ. अब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ इज अ बिग क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ. क्यों? कम्युनिकेशन हुई नहीं. कम्युनिकेशन नहीं हुई. क्यों नहीं हुई? रेखा ने हाँ या ना जो भी बोला वो अभी तक पहुंचा नहीं है, उसकी कम्युनिकेशन पहुंची नहीं है, बिकॉज अमिताभ डिड नॉट हियर यस. ओके, अमिताभ ने यस सुना नहीं है. ओके, चलिए, ग्रेट. सो दिस वाज our first introductory session wherein we focused on offer and acceptance and introduction about a contract. Okay, chaliye, great. So do not forget to purchase our offline mocklet test series, one of the very wonderful test series available. Make sure that you utilize it to the fullest. Okay, thank you very much, and make sure that you follow this entire contract series. बहुत छोटी छोटी चीज है, हम इसमें आपको मदद करेंगे. हर छोटी छोटी चीजों का कंसेप्ट डिटेल में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे. ओके, ऑल द बेस्ट.